Just remember, all the boys here, you own a car. And if there is any scratch on your car, on a bike, you get to notice that, yaar, मैंने तो गाड़ी मारी नहीं, ये line कैसे आ गई? And so does with the mother, with their children, that she notices every single improvement in their, अपने बच्चों के अंदर. The cases are like that. You need to nourish them. उनको पालना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है. ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने पिटिशन ड्राफ्ट की और जाके अदालत के अंदर और नो 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 नॉट लाइक दैट. एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम सजेशन दैट हाउ टू ड्राफ्ट द बिल. सो लेट्स स्टार्ट. Although I practice criminal law, but my always and first love with reference to the academic area is the Constitution. And I learned a great deal from His Lordship Mr. Justice Fazal Karim Saab, and I must recommend all of you. I must recommend all of you buy his book, Code of Criminal Procedure by Justice Fazal Karim. And trust me, I'm telling you with all the authority and my little knowledge that that is the only commentary on CRPC in Pakistan. The rest of the books are the compilations, and you learn a great deal from that book, Code of Criminal. It teaches you Constitution, it teaches you CRPC, it teaches you Pakistan Penal Code, it teaches you Qanun-e-Shahadat. So in this size of a book, you have almost 4 most fundamental areas of law which are in that book. So everyone must, it's not very expensive, so everyone must buy that. So that book. So Justice Fazal Karim argues, your criminal administration of justice or your constitution talks about rights. If I have to ask you, and I'm not going to judge anyone, you, because I know I'm a student of Socrates and he said you know everything. So I know you know about rights. If I have to ask you, what is a right? Right is an entitlement recognized by law. Right is an entitlement recognized by law. If your right is not recognized by law, you can never claim it as a right. So right is very important to understand, because next dynamics of the criminal administration of justice be revolving around that. Fundamental rights are those rights which are envisaged in the Constitution. And the third one is human rights, which you enjoy, the entitlements you enjoy by virtue of being human. In most of the training, I do ask many of the students that, can you give me a difference between crime and offense? They both sound similar, but do they? Offense is an act prohibited by law, and that is catered in the Pakistan Penal Code. Crime is a deviant behavior that does not necessarily means be offense. You might have seen many law of tort के अंदर बहुत सारे आपको crimes वगैरह मिल जाएंगे, so on and so forth. When you talk about law of bail, although these few couple of slides might seems to be alien to you, because केड़ा magistrate article 4 की बात करता है, सर कौन सा magistrate article 10 की बात करता है, but that's your thought. They do matter. So I have postulated certain articles in front of you which are directly, indirectly very much important when it comes to law of the bail, because majority of the judgments, be that may it's your provincial high courts or the Supreme Court of Pakistan, they revolve around these articles. Article 4, Article 9, Article 10, Article 10A, Article 13, Article 19, Article 25. These are the articles which are very much relevant for you to understand. Now, criminal administration of justice. Can I ask them the question? Yeah. What is criminal administration of justice? The components of criminal administration of justice. Anyone who can tell me? Anyone? Yes, please. माइक की जरूरत नहीं है, ऐसी बोल दें.
I believe they are the stakeholders of criminal administration of justice. I am talking about what is the statutory construction of criminal administration of justice. आपके सामने रखते हैं जी. Substantive law. Substantive law is a law which talks about your rights, duties, obligations, and liabilities. And that's exactly what your Pakistan Penal Code is all about. Section 300 tells you what is Qatl-e-Amd. That is your right to know that that is Qatl-e-Amd. And that gives you a right to life in Section 300. Section 302 postulates three scenarios. 302A, 302B, 302C. आप लोगों ने कभी स्टूडेंट ऑफ लॉ सोचा इस बात को कि 302B की 2 सजाएं क्यों हैं? अगर मैं हसन का कत्ल करूं तो लॉ कहता है यह कत्ल अमद है, लेकिन मैं किस तरह का कत्ल करूं कि इसको मुझे सजाए मौत हो, और मैं किस तरह का कत्ल ना करूं कि मुझे सजाए मौत ना हो, मुझे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट 302B टॉक्स अबाउट. और फिर कौन सा ऐसा सिनेरियो है कि जिसके अंदर मुझे ना सजाए मौत हो, ना मुझे उम्र कैद हो, मुझे 25 साल के अंदर सजा हो जाए? 302C. Have you ever thought about it? That's exactly the dynamics of criminal administration of justice. Your substantive law is never complete until and unless coupled with your procedural law. Procedural law is a law which gives you the mechanics, how your rights, duties, obligation and liabilities are going to be governed in a court of law. 302 मुझे बता तो रहा है सजा कितनी है, 406 मुझे बता तो रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा कितनी है, मुझे 379 में थेफ्ट तो बता रहे हैं, मुझे डिकॉइटी का तो बताने लगे हुए. बट हाउ if some allegations are put on me, what are the remedies available to me? That is the procedure which is catered and handled and tackled by the procedural law. And the third one is, which majority of you are going to ignore it. I've been teaching, used to teach, now I don't teach anymore, but when I used to teach, majority of the students ignored it. My peers, my lawyers ignored this subject. That is adjective law. Adjective law is a law which supplements, which supports substantive law and procedural law. That is Qanun-e-Shahadat. I was quite fortunate enough to have been trained, learned Qanun-e-Shahadat from Sheikh Imtiaz Sahab, the great stalwart from Punjab University Law College. शेख इम्तियाज साहब कहा करते थे, कानून शहादत एक ऐसा कानून है कि मैं एक आर्टिकल को आज पढ़ूं और दोबारा कल पढ़ूं, इट टेल्स यू अ न्यू स्टोरी. दैट्स एग्जैक्टली, मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स इग्नोर इट. आपकी ट्रायल एडवोकेसी, आपकी एपलेट एडवोकेसी, आपकी सिविल एडवोकेसी, आपकी कमर्शियल, आपकी ट्रांजैक्शनल, आपकी एपलेट जितनी एडवोकेसी है, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनटिल अनलेस यू हैव अ, आई एम नॉट गोइंग सेइंग गुड, all I'm saying is a fair grip on Qanun-e-Shahadat. It is that mandatory and lawyers ignore it. किसी को रेलेवेंस के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, एडमिसिबिलिटी का नहीं पता, ऑकुलर अकाउंट की एविडेंस की वैल्यू क्या होगी, अप्रेजल ऑफ एविडेंस क्या होती है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या. दैट्स एग्जैक्टली योर लिटिगेशन इज ऑल अबाउट. सो आई मस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज काइंडली लॉन्ग योर प्रैक्टिस, give a good read to Qanun-e-Shahadat articles on a daily basis. Trust me, I always say, I never supposed to be a lawyer. I was supposed to be a doctor. But one fine day, my father was conducting a DB in Lahore High Court and I was called there. I did not have a leverage to be, use or drive his sarkari gaadi. तो उनका गनमैन था, आज भी जिंदा है, फैसल साहब, वो मोटरसाइकिल पे मुझे लेने आए और चले गए. तो उनके साथ जो लॉर्डशिप थे डीबी के अंदर, उन्होंने कहा जी योर फादर वांट्स यू टू बी अ लॉयर. मैंने कहा सो बी इट. वो बहुत खुश हुए. उन्होंने फौरन से पहले मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला करवा दिया. वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज गोइंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो कहते किधर जा रहे हो?
मैं कहा जी आपने खुद ही मेरा वो छुड़वा दिया और इधर आप भेज रहे हैं मुझे। मैं कहा नहीं नहीं, नाउ देयर कम्स अ लेसन। Ahmad Qayyum might disagree with this philosophy, but that's my philosophy and it worked with me. उन्होंने कहा, I know you can pass Government College Lahore. He sent me to a lawyer's firm and called that lawyer कि इसको अपने मुंशी का मुंशी बना दे. I worked as a मुंशी for इकबाल कुरैशी साहब, वो बुरहान साहब के मुंशी थे, उनके मुंशी के तौर पर 2 साल मैंने काम किया. Government college, passed, law college. Now, I wanted to be a barrister. I'm just giving you the relevance with that. I wanted to be a barrister. I went to, Nabil knows me very well, I went to UCL for admission for several reasons, along with this University of London degree. मैं वापस आया, टोल्ड माय फादर के जी मैंने अपना दाखिला करवा लिया है उधर यूसीएल के अंदर. कहते क्यों, तू तो वकालत पाकिस्तान करनी है इंग्लैंड? मैं जी ऑफ कोर्स पाकिस्तान. गो टू पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज. खैर इट्स बीन रिकॉर्डेड सो आई वोंट से कि पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए. मुझे उन्होंने एलिवेट कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज के बाद लॉ कॉलेज के अंदर उन वकील साहब बुरहान साहब के साथ काम करने के लिए. सो मेरी एलिवेशन ये हुई कि मैंने 3 साल लॉ कॉलेज क्लासेस लेने के बाद कोर्ट्स में आ जाना, चेंबर में जाना, तो बुरहान साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया. एंड दैट्स हाउ द जर्नी गोज ऑन. One thing which was very important here is this profession is all about skill, and I will demonstrate you the skills along the way this training course. I always learned from my seniors that they have given so much importance to Qanun-e-Shahadat that my father used to talk about Qanun-e-Shahadat all the time, and the judges which I work with, which I have trained with, और जो जिनको LLM में भी पढ़ाया, कानून शहादत इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट सब्जेक्ट इज अ मस्ट सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू. लॉ ऑफ बेल को मास्टर करने के लिए आपके पास ये मैंने 5-6 लॉज हैं आपके सामने रखे हैं. इन तमाम लॉज का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. स्टेक होल्डर्स मैंने आपके सामने एक डायग्रामेटिक रखी है कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है. जो बच्चा बता रहा था कि दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू हैंडल बेल मैटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर ऑल ऑफ यू एंड माई एसोसिएट्स नो इट फॉर अ फैक्ट कि हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ. And I'm going to give you this formula. I'm going to give you, this lady is sleeping. That's very, yes. Next. CCP formula. It happens very rarely that somebody sleeps in my training. CCP. अब ये CCP formula आपके सामने मैं unfold करता हूं. ये डायग्राम देखिएगा. Chamber handling, court handling, and the third one is post argument handling. किसी भी बेल मैटर के ऊपर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और वो कैसे अप्लाई करना है मैं भी आपको दिखाता हूं. क्योंकि मेरा एफएससी प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ना फॉर्मूले बनाया करते थे. एशेली, बेबकनॉफ, नैना मिगाल, सेप्स क्लार्क का पूरा पीरियोडिक टेबल इस फॉर्मूले में आ गया. सो आप लोगों को बेल आसान और ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया. अब डायमेंशंस आपके सामने 1 by 1 मैं सारी खोलता हूं. चैम्बर हैंडलिंग, these are the practical tips to prepare any case of a bail. I still remember when I was in that law firm, जिस सीनियर के पास जाओ FIR बेटर करो, जिसके पास जाओ FIR बेटर करो. अब मैं सोचूं कि मैं इस चेंबर के अंदर सीखने के लिए आया हूं, हर कोई बंदे ने मुझे वसीका नवी समझा हुआ है. वही बताने लगा. जिस बंदे के पास जाऊं, जी आप ये इसको जो है ना FIR पढ़े और इसको लिखे. अच्छा, लिखने का मतलब पता है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं.
आप लोगों की जो जेनजी और जेल अल्फा है जो आपकी है, यू गाइज आर क्वाइट लकी इनफ कि आप लोगों को कंप्यूटराइज्ड एफआईआर मिलती है, वरना तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किसी भी चेंबर के अंदर किसी भी यंग वकील की जिंदगी का सबसे बड़ा इजाब जो होता था ना, वो एफआईआर को पढ़ना और उसके बाद उसको बेटर करना। बेटर करने का मतलब यह है कि अगर इतना पोर्शन है एफआईआर का, तो आपने वो सारी की सारी एफआईआर को समझ समझ के, वो शीशा लगा लगा के, लफ्जों को बड़ा कर करके आपने उसको लिखना है। और उसके बाद कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हुई कि लफ्जों को और रोल को चेंज किया गया, तो गवर्नमेंट रियलाइज कि नहीं, ये जो है ना आपको हम कंप्यूटराइज बना देते हैं। सो यू गाइस आर लकी इनफ। बट आपने फर्स्ट पॉइंट देखा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, रीडिंग एफआईआर ओवर एंड ओवर। ट्रस्ट मी, मैं जितना मर्जी आपको कह लूं, मेरे एसोसिएट्स का एक्सपीरियंस आपको बता देता हूं। काफी अरसे से मेरे पास एसोसिएट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं पढ़ता। लेकिन एक चीज का वादा ऑन कैमरा आपके सामने करता हूं, जितनी दफा एफआईआर पढ़ोगे उतनी दफा नई चीजें उस एफआईआर से निकलेंगी। सो मच सो, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरे वालिद साहब तो एक हाइपोथेटिकल जाए वकुआ पे मुझे ले जाया करते थे कि फर्ज करो नबील साहब वहां पे खड़े हुए हैं, मलिक साहब वहां पे खड़े हुए हैं, अगर नबील साहब ने 30 बोर का फायर मारा है तो मेडिकल के अंदर देखो कि उसके अंदर क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी पूरी पिक्चराइजेशन करके एफआईआर बताना। अब बताओ, अगर तुमने नबील की बेल आर्ग्यू करनी है, जिशान की बेल आर्ग्यू करनी है, व्हाट इज योर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट? दैट्स हाउ आपकी पूरी की पूरी एफआईआर से ही आपके आर्ग्यूमेंट निकलते हैं। आई वॉज लिसनिंग, सलमान साहब ने आपको लेक्चर दिया, सलमान सफदर साहब ने, और वो ही राइटली पॉइंटेड कि हमारे यहां एफआईआर के अंदर इतनी ज्यादा फोटोग्राफिक मेमोरी को पोस्टुलेट कर दिया जाता है कि जी नबील साहब वहां से आए, हसन ने वहां से ललकारा मारा, मलिक साहब के पास पंप एक्शन था, जमील के पास ये था, उसने 100, यानी सो एलैबोरेटिव दैट इट मेक्स योर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सो कन्वोल्यूटेड कि बतौर डिफेंस आपके पास रूम ही रूम अवेलेबल है मुदई और यानी मजरूब और गवाहों के साथ खेलने के लिए। सो दैट्स हाउ रीड एफआईआर ओवर एंड ओवर। नंबर 2, अगर आपके पास एफआईआर आ गई है, दैट डज नॉट मीन कि अब आपने जाके बेल आर्ग्यू कर देनी है। यू हैव टू ड्राफ्ट इट। ड्राफ्टिंग के पोर्शन को मैं एंड पे टैकल करूंगा, बट ट्रस्ट मी, गलत करो, सही करो, ऑल्दो आई वोंट रिकमेंड इट, बट आप लोग यंग बच्चे हैं, आपके पास एआई टूल्स आ गए, उनकी यूटिलाइजेशन करके आप अपनी प्लीडिंग्स को खुद ड्राफ्ट करें। Go as simple as you can. So drafting your pleadings, and pleadings means your bail petition. Don't bent upon these stenos sitting outside Iwane Adal and Lahore High Court, because they are compromising your ability to learn how to draft. And that's exactly what AI does. But I would really recommend all of you that you draft your own petitions. And what you have to draft, that way I will handle in the drafting portion. The third one is skeleton of pleadings and speaking note. Speaking of which, I'm being given exemption by the Bar Standard Board of England and Wales, and I'm doing my qualifying sessions. Few days ago, I attended one of my session from Her Lady White House Casey. She's a sitting judge. She was telling this. There is a difference between skeleton arguments and speaking note. हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिस है कि एक skeleton argument बनाया और दे दिया. What is speaking note? Have you guys ever practiced in your chamber, in your room, how to argue before a judge? आपके सीनियर ने, मुझ जैसे नलायक ने आपको कहा होगा, यार ये पढ़ो पकड़ो बेल पिटीशन, जाओ आर्ग्यू करो। सर बताएं तो सही, करना क्या, तुमने एफआईआर नहीं पढ़ी? नो, देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। इफ आई हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी बाय माय सीनियर टू आर्ग्यू अ केस,
Why should I go in a court unprepared एंड के सर देखें जी इसके अंदर जो इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनाया हुआ वो बनता नहीं है और ये जजमेंट आई है 2025 SCM 111711130 उसकी बेस पर नो आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म व्हाई शुड आई नॉट परफॉर्म सो यू ऑलवेज मेक योर स्पीकिंग नोट दैट व्हाट यू हैव टू आर्ग्यू से इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और वो हमारे यहां लॉयर्स जो फौजदारी के लॉयर्स हैं वो एक फैक्ट शीट बनाते हैं Fact sheet is not your speaking note. Speaking note are your line of arguments you have to do in a court of law. Speaking note are the line of arguments you have to do in a court of law. And most important one, researching case laws. Your pleading must be, your drafting must be supported by the case laws. As long as you have a case law, आप लोग अभी ये नहीं, अगर आप में से थोड़े से सीनियर लोग बैठे होते तो वो कहते कि सर इधर सुनता कौन है, ना सुने, but at least your conscience is clear that you prepared well, you did your best, you did what was required in any conventional proceeding, court of proceedings to argue, that was done. Now the decision is not your hand, in your hand, that's not your domain. Your domain is to give a true, honest, professional representation your client, and that is not possible that मैं जाके वहां पे स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं सिर्फ जाके सर ये FIR में हुआ था, ये animosity है. Did you bring any case law to support your argument? That is very important, and your pleadings must be supported by the case law. So this is how I handle any case of bail in my chamber. Majority of lawyers or the big lawyers might, I'm not a big, I'm very small, so they might disagree to this technique, but that technique worked very well for me. So that's how I handle any case of bail in my chamber. That's the first part. Second part, court handling, very important, and I will not go into the details of the court handling for several reasons. First, it's recorded, and second, सलमान साहब हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल ऑन दैट. बट मैंने एक डायग्राम बनाई आपके लिए. इस डायग्राम को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू हैंडल अ कोर्ट. किसी भी कोर्ट को हैंडल करने के लिए ये कंपोनेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फाइलिंग, आर्ग्यूमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, very important. And I tell you one thing, कि this diagram varies from pre-rest bail to post-rest bail. When you file a petition before magisterial court, court of sessions or the high court, you file a bail petition. Now the case is fixed for the arguments. When the case is fixed for the arguments, you have almost 3 opponents. Always presume and assume judges against you. Number 1. Prosecution in shape of ADPP or DP or DDPP is always against you. No matter how good case you have, they are always going to speak against you. I give you a very candid observation. Abhi recently I was contesting a case before His Lordship in Lahore High Court. पुलिस ने तफ्तीश में लिख दिया है ये बेगुनाह. अब सरकारी वकील साहब जो वहां पे है वो FIR पढ़ के जज साहब को सुनाई जा रहे हैं और टू कन्विंस द जज कि ही इज गिल्टी. मैं उन्हें कह रहा हूं कि सर इसमें वो आखिरी जो पुलिस डायरी है वो अगर इन्वेस्टिगेशन को आप देख लें. सो ऑलवेज अज्यूम ADPP is always, prosecution is always against you. No matter how good investigation has been conducted, investigating officer is always against you. I give you practical experience. Yesterday I was appearing before His Lordship Mr. Justice Tariq Mahmood Bajwa Sahab. Matter pertains to 489F. ये check was guarantee check. मेरा argument अदालत में ये था कि complainant का और मेरे भाई का construction का एक business था जिसके अंदर उनको नुकसान हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर जब उन्होंने कहा कि मेरे भाई का जो चेक जो है वो दिया गया एक्नॉलेज इन एग्रीमेंट. जज साहब ने एसपी को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करें. एसपी साहब ने वही सब कुछ लिखा
जो मैंने आपके सामने बताया कि इसका लेन देन नहीं है, लेन देन इसके भाई का था, इसने बतौर गारंटी चेक दिया, लेकिन हमारी तफ्तीश के मुताबिक, अलानी और खुफिया तफ्तीश के मुताबिक पिटिशनर गुनहगार है। सो ऑल ये दीज जो मैंने आपको ओपोनेंट्स बताए हैं, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट यू। सो हाउ टू हैंडल द ओपोनेंट्स वेरीज फ्रॉम द कोर्ट, द ओपोनेंट, द प्रोपोजिशन इन लॉ, द केस इन लॉ, दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल इट। एग्जाम्पल देता हूं आपको। No matter how difficult case you have, no matter how easy case you have, always and always stay humble towards the court of law, because neither the police is going to give you any kind of relief nor the prosecution. The relief is always from the court, number one, and number two, by staying humble to the judge. अगर उसने इस केस में आपको रिलीफ ना भी दिया, he will remember it. अभी कल हम लोग चैम्बर के अंदर बैठे हुए थे, जिस तरह हम लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, यार ये फलाना मजिस्ट्रेट जो है ये रिलीफ नहीं देता, फलाना एडिशनल जो है ये नहीं देता, ये फलाने लॉर्डशिप के पास आप जाओ रिलीफ नहीं देते। ट्रस्ट मी, उन जजेस के पास चैम्बर में बैठ के हमारे बारे में बात करने के अलावा भी और कुछ नहीं है। एंड दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय ख्वाजा शरीफ साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। सो फॉर दैट रीजन, as long as you are humble to the court, उस केस में रिलीफ नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। आप कौन सा कोई वो गारंटियों वाली वकालत करते हैं, आप तो मेरिट वाली वकालत करते हैं ना। सो उसके लिए आपका काम था प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, यू डिड दैट पार्ट। नहीं मिला, यू गो टू द नेक्स्ट कोर्ट, नहीं मिला, यू गो टू द नेक्स्ट कोर्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट्स हाउ द मैकेनिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वर्क इट आउट। सो ऑलवेज स्टे हम्बल टू अ जज, ही विल ऑलवेज रिमेंबर यू। नंबर टू, एज अ लॉयर, हमारे यहां मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आई हैव डन मेनी ट्रायल्स, एपलेट एडवोकेसी। बेल का जो कॉन्सेप्ट और बेल का जो सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा प्रेशर दोनों पार्टियों के इसी स्टेज के ऊपर लगे होते हैं, और यही डायलेमा है ट्रायल की एफिकेसी को कम करने के लिए। वरना एज अ लॉयर अगर कोई मेरे से पूछे अगर बेल देनी है दे दे, मैं ट्रायल कंडक्ट करता हूं, 6 महीने में बंदे को सजा हो जाएगी, आई डोंट केयर, वो ही विल बी लॉन्ग गॉन इन द जेल। लेकिन चाहे मुद्दई हो, प्रोसिक्यूशन हो, डिफेंस हो, सारा का सारा जोर जो है ना आपका, वो बेल के ऊपर है। सो उस वजह से अक्सर आपने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, लोगों को भी देखा होगा, आप यू आर कॉन्शियस पीपल, कि कोई वकील साहब कुटने लगे हुए तफ्तीशी को, कोई दूसरे वकीलों, नेवर डू दैट। The black robe you wear is an element or is a sign of dignity, grace, and acting, behaving, operating professionally. It doesn't suit to the lawyers. So, even if the opposing counsel, even if the sarkari wakil, even if the investigating officer is going against the facts, your point is, your subject is to point that to a judge that these are the things they are doing. So that's how it operates. Body language. I have done a video on the body language, but that's very important. Always stand, be that may you are a girl or you're a lawyer, like an alpha male or alpha female in a court of law. Very confident. Speak from your diaphragm. Speak from your diaphragm. Don't be nasal. Your body weight should be on your hips. Stand like straight and be assertive, authoritative while arguing. Because your body language, एक टीवी सीरीज आप देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं लाइव टू मी है या लाइव विद मी है, वो पूरी की पूरी सीरीज आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाती है कि व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग, और उसके अंदर एग्जांपल ये नहीं को गोरों की है, मुशर्रफ की एग्जांपल्स हैं, कभी सदाम हुसैन की एग्जांपल है, बुश की एग्जांपल्स हैं, कि दुनिया के अंदर बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स जो होते हैं दे आर यूनिवर्सल। अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हंसना ऐसे है तो अमेरिका के अंदर हंसना ऐसे नहीं होगा, वो रोना होगा। दैट्स नॉट हाउ इट इज। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स आई नोटिस्ड, आई फेल्ट, आई सीन मेनी अ टाइम्स
कि समटाइम्स यू आर आर्ग्यूइंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और अ एडिशनल सेशन जज, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर आर्ग्यूमेंट्स। वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ कोई दूसरी फाइल खोली हुई है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज पकड़ी हुई है उस पर काम कर रहे हैं, उनका वो रीडर आके उनको फाइल पकड़ा रहा है कि वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है सेशन जज साहब के साथ। दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस। नाउ डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना अदालत के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जज साहब अगर मैं आपको सफा नंबर 5 पे ले जाऊं, उसकी लाइन नंबर 4, अब जैसे ही मैंने ये कहा सफा नंबर 5 लाइन नंबर 4, वो जज भी कॉन्शियस हो जाता है कि पता नहीं मैंने की बखान लगा है। सो दीज टेक्निक्स हर केस के मुताबिक आप ऑपरेट करते हैं, यानी यू गेट द अटेंशन ऑफ दैट जज। तू रिलीफ देना ना दे, लेकिन तेनू मैं गल अपनी पूरी सुना के जानी है। दैट्स द थिंग यू शुड अडॉप्ट, बिकॉज दैट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू द क्लाइंट, दैट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू योरसेल्फ दैट यू डिड द बेस्ट थिंग व्हाट यू पॉसिबली कुड हैव। So these are the things which or techniques, at least specially क्योंकि ट्रायल के अंदर डायनेमिक्स डिफरेंट है, you have to operate differently, but bail stage के ऊपर these dynamics matters a lot। चाहे आपकी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो, these mechanics, these things matters the most of the times। आपकी body language wins you a case, क्योंकि judges are also human। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई भी है 406 के ऊपर। मेरे चैम्बर से एक बच्चा जाता है एक केस आर्ग्यू कर रहे 406 का, जिसमें हम मुद्दई के वकील हैं। वो जज साहब को कहते हैं सर इनकी अपनी वीडियो ये कहती है और ये यहां पे बैठे मुद्दई को डिफेंड करने लगे हुए हैं, यानी मुद्दई का केस आर्ग्यू कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू ऑपरेट, दैट यू, और याद रखिएगा हर केस डिफेंसिबल है, हर प्रोसिक्यूशन वर्दी टू असर्ट। ओके, माई बिगेस्ट डायलेमा पोस्ट आर्ग्यूमेंट हैंडलिंग। कैसे? ट्रस्ट मी, मैं जेड़ा केस आर्ग्यू करके आवा उसमें आके मैं जब तक ये काम ना कर लूं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती। और ये बड़े तकलीफ दे काम होता है कि मैं जब आर्ग्यू कर रहा था, व्हाट डिड यू मिस, कि आपने एक अपना स्पीकिंग नोट बनाया, एक स्केलेटन आर्ग्यूमेंट बनाया, एक रिसर्च ट्रेल उठाई, इसको उठाओ अल्लाह के बंदे को, एक स्केलेटन आर्ग्यूमेंट बनाया, एक स्पीकिंग नोट बनाया। बल्कि एक और आपको टेक्निक बताता हूं। टेक्निक ये है, चाहे आप आफ्टर रेस्ट बेल आर्ग्यू कर रहे हो, चाहे प्री रेस्ट बेल आर्ग्यू कर रहे हो, एक बुकलेट लाजमी बनाया करो। वो बुकलेट क्या होती है, जिस तरह आपने सेशन जज के पास बेल फाइल किया बिफोर द एडिशनल सेशन जज नबील रफाकत साहब, केस का टाइटल और नीचे केस लॉज की हेडिंग देके जो जो केसेस आपने रिलाई करने हैं उनके 1 2 3 4 4 जितने भी केसेस होंगे उनके टाइटल, साइटेशन और रेलेवेंट पोर्शन लिख दिया करो, और उसके नीचे केस कंपाइल करके वो अपने जज को लाजमी देने हैं। जिसे कहते हैं ना खुशखती के भी नंबर होते हैं, दैट्स एग्जैक्टली वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपरों के अंदर जिनकी खूबसूरत हेडिंग्स होती हैं उन्हीं के नंबर आते हैं, बाकी बेचारे रह जाते हैं। नो मैटर हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, आप 57% के ऊपर टॉप कर रहे होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका पिछला करियर में एजुकेशनल के अंदर 900 में से 896 नंबर हो, 500 में से 490 नंबर हो, लेकिन आपके करियर का बेड़ा अगर जरूर करना होता है वो नंबर देके, सो वो वहां पे खुशखती के नंबर होते हैं। सो वो खुशखती जो है ना वो भी बहुत जरूरी है टू विन द जज, कि हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट इन दिस केस, इन अ केस। सो मेरे लिए सबसे, और ट्रस्ट मी मैं काफी अरसे से जितना मेरा वकालती सफर है हमेशा ऐसे हुआ है कि आई ऑलवेज मिस समथिंग, उसको नोट डाउन कर लिया कि मैंने मिस क्या किया। जब तक ये आप अपने किसी मुकदमे के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, you will never grow professionally, because this is a classic method of continuous professional development। पाकिस्तान में तो आप लोग लकी हो ना कि आप लोगों को ये बीबीसी का कोर्स करा दिया इन्होंने, उसके बाद द मोमेंट
यू हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, उसके बाद फ्री जो मर्जी करो, जैसा कोई नहीं है। इंग्लैंड वे अमेरिका के अंदर आपको लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए सीपीडी मॉड्यूल्स करने पड़ते हैं। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ सीपीडी वेयर यू लर्न अलॉट, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, कि जब मैंने जज साहब के सामने आर्ग्यू कर रहा था तो मैं क्या ऐसा बेहतर कर सकता था अपने बेल के आर्ग्यूमेंट के लिए कि मुझे रिलीफ मिल जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और मेरे 2 केसेस लगे हुए, एक स्पेशल डीबी के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, दोनों 376 के, दोनों अपीलें और उनकी सस्पेंशन फाइल हुई। मैंने एक केस और एक किसी और दिन में था, एक किसी और दिन में था। अच्छा, व्हेन आई आर्ग्यूड दैट केस, 376 में 10 साल सजा हुई हो, डीएनए पॉजिटिव आया हो, किधर रिलीफ मिलना आपको? सस्पेंशन इज ऑल्सो अ बेल। कहां से आपको? उन्होंने तो यही कहना कि अपील को देखें। आई वॉज एडमेंट कि नहीं सर मेरा केस बनता है। जज साहब ने कहा ठीक है आर्ग्यू करें। 10 साल सजा हुई भी थी, 2025 की अपील थी, उन्होंने मेरी सस्पेंशन डिसमिस कर दी। What did you learn from what could have been better? I applied what could have been better. 4 दिन बाद उसी डीबी के पास मेरा दूसरा केस लगा हुआ था, 376, सेम प्रोपोजिशन, डीएनए पॉजिटिव। मैंने कहा सर सस्पेंशन को अगर मैं विड्रॉ कर लूं और मैं अभी अपील आर्ग्यू कर देता हूं। कहते करे अपील आर्ग्यू। आई आर्ग्यूड अपील, मैं लेने बेल गया था, आई गॉट माई पिटिशनर एक्विटेड। सो उस सिनेरियो के अंदर, सेम सिनेरियोस के अंदर आई ऑपरेटेड डिफरेंटली। सो दैट वाज द थिंग कि चूंकि 10 साल सजा हुई है, चूंकि डीएनए पॉजिटिव है, तो इसके अंदर तो उन्होंने सस्पेंशन मेरी डिसमिस करके अपील, तो क्यों ना मैं एक रिस्क लूं कि मैं जज साहब को कहता हूं सर मेरी अपील ही क्यों ना आप सुन लें। और आई वॉज लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ, उस दिन कोर्ट में काम कम था कि उन्होंने सुन लिया और दूसरे काउंसिल ने अपोज नहीं किया कि ठीक है जी अपील ही आर्ग्यू करें। और फिर वो जब हमने एविडेंस को पढ़ा तो हमने किस तरह सेफ कस्टडी को तोड़ा और ये वो सारा कुछ, दैट्स हाउ इट ऑपरेटेड, बट दैट्स हाउ आई लर्न। ये अभी couple of weeks ago. So I apply this model on myself on daily basis. What did you learn from the opposing counsel? And I give you an example. Back then when I came back from England in 2013, so उस वक्त हमारी बार के एक बहुत बड़े सिविल साइड के बहुत बड़ी एक अथॉरिटी रहे हैं, वो जिशान साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हुकम कुरैशी साहब। उनके बेटे नुमान कुरैशी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे शायद, तो उन्होंने मियाँ साकिब निसार साहब को बुलाया हुआ था इधर अलहमरा के अंदर, उनके वो जो ताज़ियती रेफरेंस होता है उसके अंदर। मियाँ साकिब निसार साहब ने बड़ी कमाल बात की थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को दुआ करनी चाहिए कि आपका अपोजिंग वकील काबिल तगड़ा वकील होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको नॉक डाउन करता है, दैट नॉकिंग यू डाउन इज अ गुड एरिया ऑफ लर्निंग। कि जितना आपका काबिल ऑपोजिट वकील होगा वो उतने अच्छे तरीके से आप उससे सीख सकते हैं। सो आप इस प्रोफेशन में अपने एडवर्सरी से बहुत ज्यादा सीखते हैं। कन्वेंशनली आप लोगों को एक दूसरे के एडवर्सरी ना हो, लेकिन अदालत में तो यू आर एडवर्सरी, तो आप उससे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। इसीलिए मैं यानी नबील साहब बहुत अच्छी स्नूकर खेलते हैं, मैं उनके लेवल का नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब भी मौका मिले नबील साहब के साथ स्नूकर खेलें ताकि मैं अपनी गेम को इंप्रूव कर सकूं। सो मैंने प्रोफेशनली बड़ी दुआएं मांग के मेरे खिलाफ कभी आजम नजीर तारड़ साहब आ जाए, सलमान सफदर आ जाए, अली ज़िया बाजवा साहब मेरे ऑपोजिट लॉयर हों, यानी इन लोगों के साथ मैच फंसाने का मजा आता है। सो दैट्स हाउ यू शुड बी फोकसिंग ऑन, इट्स नॉट इन योर हैंड, बट ये एक खुशकिस्मती होती है कि आपका अपोजिंग का, आप लोगों की जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, अगर किसी बड़े वकील को केस हरा दिया तो उसके बाद आके फ्लेक्स और बोस्ट, क्या होता है यही वर्ड होते हैं ना, फ्लेक्सिंग, जी मैंने तो फलाने को केस हरा दिया। रादर देन आपका फोकस ये होना चाहिए, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माय ऑपोजिट काउंसिल। आई स्टिल टुडे learn from the authorities of these big lawyers, and big does not mean in size, big means here skill, craft, इसके अंदर आप जो intellectually expert होता है, that's how I operate.
I will not go into the kinds of bail, वो एक it's too basic for keeping the time constraint. अब आपके सामने इंटरेस्टिंग एरिया आएगा जहां मैं रियल टाइम सिनेरियोज, मुझे माइक मिल सकता है? बिकॉज ये एक ही माइक है कि और भी है? एक ही है, फिर ये आप रखो, फिर दे। अब मैं आई विल बी इन्वॉल्विंग यू इन सच सर्कमस्टांसेस। कोई मुझे बता सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्री रेस्ट बेल क्या है? एलिमेंट्स आप इनको दीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ प्री रेस्ट बेल क्या है? और मैं आपको बताऊं कि जिशान साहब बैठे हुए, इनकी फील्ड से हमने अडॉप्ट की है ऑर्डर 39 रूल 1 and 2। हदायतुल्लाह खान केस वर्सेस द क्राउन, PLD 1949 Lahore 21, authored by the great stalwart Justice Cornelius. Prima facie case, isn't it order 39 rule 1 2? Malafide, Badaniyati, and the third one is irreparable loss. 498 की वर्डिंग को कभी पढ़िएगा, पढ़ने पड़ जाएंगे कि वहां ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। The guidelines comes from the Hidayatullah case, which gives you this interpretation that wherever you are these apprehensions, you go for a pre-rest bail. हाई कोर्ट प्री रेस्ट बेल ग्रांट कर सकती है? कोई मुझे बता सकता है? यस सर, कौन कह रहा है? व्हाट इज द लॉ? नो, जाते नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, फर्स्ट की कैंसिलेशन के बाद। अच्छा जी, ये आपके सामने केस है सेम। In a proper case, the High Court has power under Section 498 Criminal Procedure Code to make an order that a person who is suspected of offence for which he may be arrested by a police officer or a court shall be admitted to bail. Admitted to bail का कॉन्सेप्ट जरा आपने दिमाग में रखना है, ये आगे बहुत दफा आएगा। Pre-rest bail, where to file, basics. मुसम्मत रजिया शाहीन वर्सेस द स्टेट, PLD 1967 1990। भी किया जा सकता है कि नहीं सर, मियां अली अगर बकवास कर रहा है कि प्री रेस्ट बेल ऑलरेडी बंदे को नहीं दी जा सकती, ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जो ऑलरेडी जेल के अंदर है उसको हम कैसे बेल ग्रांट करें? ही इज ऑलरेडी इन जेल। क्या प्रिंसिपल ऑफ कस्टोडियल लेगस को काउंटर किया जा सकता है? यस सर, कैसे? हाउ हाउ कौन कह रहा है? सर में जब हम यानी कि FIR हो जाती है तो उसके बाद जो एक पर्सन है ना वो जेल में नहीं होगा। प्री अरेस्ट बेल हम दायर कब करते हैं कि अभी उसको एक्सपेक्ट है कि नहीं? बेटा, दैट्स द लॉजिकल आंसर सर, लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ कस्टोडियल लेगेसी। इसको हम काउंटर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्री अरेस्ट बेल में एक अक्यूज्ड का कोर्ट के सामने, जज के सामने होना जरूरी होता है। अगर उसने प्री अरेस्ट बेल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अगर तो आप वकील हैं किसी ऐसे बंदे के जिसकी प्री रेस्ट मूव करनी है या ऑलरेडी पेंडिंग थी, किसी और मुकदमे में वो अरेस्ट हो गया, उस प्री रेस्ट बेल का स्टेटस क्या होगा? तो यूज द अमजद रफीक साहब जजमेंट। बट अगर अब आपके पास यही प्रोपोजिशन है और आप मुद्दई के वकील हैं, बेलों के अंदर सिर्फ मुल्जिमों के वकील तो नहीं ना होते, अब आप मुद्दईयों के वकील हैं, तो इसको काउंटर कैसे करना है? तो देयर कम्स अनदर जजमेंट, हाउ टू काउंटर प्रिंसिपल ऑफ कस्टोडियल लेगेसी। लॉर्डशिप जस्टिस असजद जावेद गुराद साहब इसको काउंटर करने के लिए अपनी जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर उन्होंने डिफरेंट सिनेरियोज को कोट किया और वो कहते हैं, इफ accused in any FIR means arrested in all FIRs lodged against him, कि भाई साहब अगर एक बंदे के ऊपर 4 FIR हैं, 3 के अंदर वो प्री रेस्ट में था, चौथी जो है उसकी वो उसके अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अमजद रफीक साहब की जजमेंट के सामने मुताबिक आप प्रिंसिपल ऑफ कस्टोडियल लेगेसी अप्लाई करेंगे और जब उसकी वो पिटीशन को खारिज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ
असद जवेद गुराल साहब जजमेंट कि एक एफआईआर अगर किसी बंदे पे हुई भी है तो उसका मतलब यही है कि वो चारों की चारों में गिरफ्तार है। सो अगर आप उन पैराग्राफ 9 के अंदर ऑलमोस्ट 6 सिनेरियोज है, उन 6 सिनेरियोज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू काउंटर कस्टोडियल एगेस और हाउ टू आर्ग्यू द अदर वे अराउंड। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, पोस्ट रेस्ट बेल। प्री रेस्ट के कुछ एंट्री केसेस को मैंने आपके सामने रखा है, पोस्ट रेस्ट बेल। अब इसकी मैं एंट्री केसेस आपके सामने रखता हूं। तारिक बशीर केस के ऊपर वो नवीद इनायत मलिक साहब ने आपके सामने बहुत जबरदस्त डिबेट की है, पीएलडी, और ये जो 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 है। बट अगर आप इसको देखें तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए निकाल के लाया कि अगर आप में से, चूंकि आप लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन इतना नहीं होता, रीडिंग हैबिट नहीं है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए आपके लिए। इन पॉइंट्स को पढ़ लें तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा तारिक बशीर केस आपके फिंगरटिप्स है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल यही है कि यू गो थ्रू द कंप्लीट जजमेंट। दे से these circumstances where there is likelihood of abscondence of accused, post arrest bail, where there is an apprehension of accused tampering with the point, so on and so forth. These bulleted points आपके सामने हैं। Now this is another interesting proposition, गौर से देखिएगा। Whether a bail can be granted to a person who is beyond Pakistan's territorial jurisdiction without appearing before the court. Who said yes? Vaguely, but can I have it loudly? किसने कहा? सवाल देखिएगा। यानी फर्ज करो कि वो मेरा एक एसोसिएट है, आई डोंट नो वो है कि नहीं है, उसको बड़ा शौक है फिलोसफियां झाड़ने का डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, ये वो उस फिलोसफियों के चक्कर में किसी ने पूछा कि जी आपको मियां साहब के साथ काम करते हैं, मैंने आपको वकील एंगेज करना है, मैं पाकिस्तान से बाहर हूं, मैं दुबई में बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे पे 302 की एफआईआर है जिसमें इश्तिहारी हो चुका हूं, उन मैं बेल किस तरह लगा? मेरे तो परपेचुअल वारंट्स निकल आए हुए हैं, आई हैव बीन डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अब मैं, उसने कहा मसला ही कोई नहीं, सो आप आ जाओ पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान आ गया तो मुझे तो एफआईआर पकड़ लेगी, मेरा तो उसके अंदर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम है। हाउ टू कम आउट ऑफ इट? क्या कोई ऐसा सिनेरियो है? जी बेटा लाउडर। नहीं अभी तो मैं शुरू हूँ सर। ऑल यू जी। सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी किसी को। वेरी गुड, बस आगे नहीं जाना, यही रुक जाओ। ये अगला सवाल है, ये अगला सवाल है। He's also my student. So, now see the interesting intricacies of law of bail. Whether a bail can be granted to a person who is beyond the Pakistan's territorial jurisdiction without appearing before the court. The first case, Imran Khan Niazi versus the state and others criminal miscellaneous justice Amjad Rafiq Saab. And Imran Khan Niazi versus Special Anti-Terrorism Court, Lahore, and 3 others, PLD 2024, Lahore 486, rendered by Honorable Ali Neelam, Her Ladyship, Madam Chief Justice, and Farooq Haider, Justice Farooq Haider साहब। ये आपके सामने 2 केस लॉस खोल गए। They say the courts are secured the attendance of the accused seeking bail via video link in a reasonable circumstances. But this does not answer the question. So सवाल क्या था? क्या किसी ऐसे बंदे को बेल ग्रांट की जा सकती है जो बियॉन्ड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है विदाउट अपीयरिंग? यही सवाल था। ये 2 केसेस अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज आगे लॉ कॉम्प्लेक्स होने लगा है इन 2 केसेस की रोशनी में। There comes a concept of transitory protective bail. Transitory ad interim protective bail. That is the concept invoked differently across provinces. कैसे? दिखाता हूं आपको। वो कहते हैं, पहला सवाल जो उस बच्चे ने सवाल किया था, हमारा पहला सवाल था क्या ऐसे बंदे को बेल ग्रांट की जा सकती है जो बियॉन्ड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है विदाउट अपीयरिंग? उन्होंने एक सवाल किया था पावर ऑफ अटर्नी वाला। Whether a transitory bail can be filed by the petitioner through himself or through someone else is the second
limb of the main question. ठीक हो गया? दूसरा, whether power of attorney is required to file transitory protective bail is a sine qua non, कि ये मैंडेटरी है कि आपको पावर ऑफ अटर्नी चाहिए. अब बेटा आप जरा दोबारा खड़े हो. आपने कहा था पावर ऑफ अटर्नी चाहिए. पावर ऑफ अटर्नी का तरीकाकार, सिविल इज नॉट माय फील्ड, वो जिशान साहब आपको बता सकते हैं. उसका बकायदा एक मैकेनिक्स और एक प्रोसीजर है. सो आप पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके परपेचुअल वारंट्स निकल आए, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गए, आपके रेड वारंट्स निकल गए, तो जो एम्बेसी की टेरिटरी है दैट इज नॉट टेरिटरी ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका और दुबई और यूएई, दैट इज द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, दैट डोमेन. सो जैसे ही आप उधर गए, दे कैन अरेस्ट यू. देन हाउ कैन यू हैव द पावर ऑफ अटर्नी? वीडियो लिंक के जरिए भी तो हो सकता है. वीडियो लिंक वाली बात अभी और. फाइल कौन करेगा मेरी जान? फाइल कौन करेगा? देखो अभी तो आप अदालत के सामने गए नहीं. अदालत ने आपको सेल्फ प्रिजम्पशन के ऊपर बेल नहीं ग्रांट करनी. यू नीड प्लीडिंग्स, यू नीड पिटिशन, you need petitioner, and you said for that reason you need a power of attorney. But what if you go to the embassy and they arrest you? Well, how to handle that? बैठ जाओ. तीसरा, divergent practices across provincial high courts. ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना और मैं आपके सामने पूरा का पूरा लॉ डाइसेक्ट करता हूं तीनों प्रोपोजिशंस के ऊपर. नंबर 1, लीडिंग केसेस ऑन ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल. ये 2 केसेस हैं, हमेश खान केस और शर्जील अनाम मेमन केस. इन दोनों केसेस के अंदर ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल विदाउट अपीयरिंग दोज पर्सन्स अलाउ हुई, मिली, एंड द jurisdiction was invoked under article 199 of the constitution. अब जरा मेरी इस ट्रेनिंग के शुरू की स्लाइड्स को दिमाग में लाओ, जो मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइव्स योर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम. आर्टिकल 4 से आइन के अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का प्यो है ना, दैट इज आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुजरे हैं. उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 4 इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. और कभी उसको पढ़ के देखिएगा. इट डजंट टॉक अबाउट सिटीजंस, इट डजंट टॉक अबाउट नेशनैलिटी होल्डर्स. इट टॉक्स अबाउट द पर्सन, एंड पर्सन की डेफिनेशन आगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड और लॉ में भी डिफाइंड है. बट इट केटर्स एवरीथिंग दैट. और ये वाहिद आर्टिकल है जिसमें एक वर्ड यूज किया गया, इनएलिएनेबल राइट. इनएलिएनेबल राइट, किसी फंडामेंटल राइट के लिए इनएलिएनेबल का वर्ड नहीं यूज किया गया. अब आप हाइपोथेटिकल रीड इन करते हुए कह रहे थे आर्टिकल 9 भी रीड इन वो इनएलिएनेबल है, हालांकि वो सब्जेक्ट टू लॉ है. फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सब्जेक्ट टू लॉ है. ये वाहिद आर्टिकल 4 है जो कि इनएलिएनेबल. सो देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्टिकल्स व्हिच आई डिस्कस्ड अर्लियर, दे सेड Malik Azmatullah versus Federation of Pakistan, Tariq Salim Sheikh साहब की judgment was also upheld by the Supreme Court of Pakistan and also relied upon by the Supreme Court. That is very important. जहां कहीं भी transitory protective bail का concept आएगा, ये judgment 2023 साहब के लिए पढ़ना जरूरी है. ये judgment आपको pleading देती है अपनी पिटिशन ड्राफ्ट करने की. ये जजमेंट आपको आर्गुमेंट देती है अपने आर्गुमेंट करने के लिए. ये जजमेंट आपको केस लॉ देती है. सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस जजमेंट इज. वो कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड अंडर आर्टिकल 199. ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल वाज ग्रांटेड एंड दैट जजमेंट वाज आल्सो रिलाइड अपॉन. हाँ, क्या अमजद रफी तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट को काउंटर किया जा सकता है किसी एनी ब्रेथ ऑफ इमेजिनेशन से? जब आपके पास आर्टिकल 10 भी हो ड्यू प्रोसेस का, आपके पास आर्टिकल 10A भी हो, आपके पास आर्टिकल डिग्निटी ऑफ मैन का भी हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी हो, और ये जजमेंट कहती हो कि आपको ट्रांजिटरी बेल ग्रांट कर दी जाएगी क्योंकि आपने आके उस अदालत को
रिकोर्स करना है जो कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट। सो बेसिकली ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट क्या है? इट प्रोवाइड्स यू अ मैकेनिज्म और फैसिलिटेशन फ्रॉम coming outside the Pakistan and approaching to the competent court of law. So in between, if you are arrested, your right to have apply for the bail, your right to join investigation is compromised by putting you jail. So that provides you a leverage whereby you go there and you, जिसे कहते हैं ना, आप अपनी bail वगैरह को apply कर सकते हैं. So that's, अब इसको काउंटर करते हैं तारिक सलीम शेख साहब को, क्योंकि मुझे हो सकता है मुद्दइयों का वकील एंगेज कर ले, जरूरी थोड़ी है कि मुझे किसी बंदे ने उसने एंगेज करना है. तो अब अगर मैं मुद्दइयों का वकील हूं, हाउ टू काउंटर तारिक सलीम शेख जजमेंट? In the contrary to this judgment, there is judgment by His Lordship Mr. Justice Abid Farooq Sahab. Abid Farooq Sahab, Farooq Haider Sahab, yeah, Abid Farooq versus Federation of Pakistan, 2023 PCRL Lahore 678. जस्टिस फारूक हैदर साहब कहते हैं, और ये गौर से सुनिएगा वर्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हिदायतुल्लाह केस के अंदर जो एक एक्सप्रेशन यूज हुआ था उसको मैं यहां पे फारूक हैदर साहब लेके आए, और वो है एज पर सेक्शन 498A ऑफ सीआरपीसी, presence of accused before the court is must mandatory and without his presence pre-arrest bail cannot be granted. So come what may, जो भी किसी ने कहा था ना कि नहीं आ सकते, अगर आप मुद्दई के वकील हैं और आपने ऐसी किसी ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल को काउंटर करना है, तो एक तो दवा के तौर पे, दाल वाओ अलिफ वाला दवा के तौर पे आपके पास फारूक हैदर साहब की जजमेंट होनी चाहिए, और दुआ के तौर पे आपकी वो बेल लगनी फारूक हैदर साहब के पास चाहिए, ताकि वो लिमिटली डिस्कस हो जाए, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर ऑन हिज कॉन्सेप्ट कि आफ्टर द 498 इंसर्शन आप किसी ऐसे बंदे को ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल नहीं ग्रांट कर सकते जो कि उस कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करता. एंड दिस जजमेंट इज टोटल इन कॉन्ट्रडिक्शन टू वो शर्जील इनाम मेमन केस वाला हो गया, उसके बाद अजमतुल्लाह केस हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका तारिक सलीम शेख साहब वाला केस हो गया. सो दैट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू ईच दिस जजमेंट. क्लियर? If there is any confusion, then I will move forward because I am going a little fast. कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? आपको जो मोबाइल के साथ लगी नहीं है, आपको तो नहीं कोई कंफ्यूजन? You know what? When you are teaching for so long, the moment I turn my face here, I release some electromagnetic waves from my body, and every one of you has his own electromagnetic wave. So कौन क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको बता देती है. So that's why I am able to spot on कौन सो रहा है, कौन मोबाइल यूज कर रहा है, कौन तस्वीरें खींच के किसको भेज रहा है, वो भी मुझे पता होता है. So that's how it is. So फारूक हैदर साहब यूज फारूक हैदर साहब जजमेंट, और ये मैंने आपकी आसानी के लिए रेलेवेंट पैरा, पूरी जजमेंट ना भी पढ़ो, पैरा 7 और पैरा 8 पढ़ लो, आपको आपकी प्लीडिंग देता है, आपको अपने आपकी आर्गुमेंट देता है, आपको आपकी सबमिशंस कोर्ट के अंदर देता है. दैट्स हाउ इट इज. आई हैव मेड कन्वीनियंट एंड इजी फॉर यू. नाउ एक्सप्रेशन एंड ट्रांजिटरी बेल, इसको आगे स्किप करते हैं. अब थोड़ा सा और मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको. सो प्री रेस्ट पोस्ट रेस्ट तो मैंने बता दिया. ट्रस्ट भी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और मैं कोशिश करूंगा आज आपके सामने इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मैं इतना नालायक हूं कि मैंने खुद इसके बारे में एक चीज आज से 10 दिन पहले सीखी है. 497(5) सबसेक्शन 5, इसके ऊपर लीडिंग जजमेंट जो है लीगल सिनेरियोस. समीउल्लाह केस है 2020 है, CMR 1115 बाय लॉर्डशिप मिसेस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब. अच्छा, नकवी साहब की आप जजमेंट पढ़ लें. ये आपको 7 ऐसे पॉइंट देती है जिनकी बेसिस के ऊपर आप कैंसिलेशन ऑफ बेल लगा सकते हैं. अगर किसी बंदे को चाहे प्री रेस्ट बेल चाहे आफ्टर रेस्ट बेल ग्रांट हुई है,
तो ये आपको 6-7 सिनेरियो देती है। पहला सिनेरियो वो कहती है अगर जो ऑर्डर आपको बेल ग्रांटिंग ऑर्डर है वो इलीगल है, नॉट वारंटेड अंडर द लॉ है, नॉट सस्टेनेबल अंडर द लॉ है, मिस यूज ऑफ बेल है, मिस यूज ऑफ बेल है, टेम्परिंग विद प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, सो मच सो कि आपने उसी तरह का सिमिलर क्राइम कहीं और कमिट किया है, उस बंदे के साथ नहीं, किसी और के साथ। अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई है कि मैंने हसन को फायर मारा है और मैंने अपनी बेल अप्लाई की और मेरी बेल हो गई, और अब मैं जाके 2 दिन बाद बाहर निकल के मैं जाके असद को फायर मार देता हूं, सो मेरी इस बात पे भी बेल जो है वो कैंसिलेशन मूव की जा सकती है क्योंकि इसने सिमिलर नेचर का ऑफेंस कमिट किया है। सो दैट्स हाउ इट इज। वही समीला केस मैंने सारी पावर पॉइंट आपके सामने रख दी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या किसी एफआईआर के अंदर एक जुर्म लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 337 F1, 354, 452 ये ऑफेंस लगे हुए, आपने बेल अप्लाई की, तमाम के तमाम ऑफेंसेस आर बेलेबल इन नेचर, आपको बेल ग्रांट हो गई, सब्सीक्वेंटली उसमें ऑफेंस ऐड हो गया, सब्सीक्वेंटली उसमें ऑफेंस ऐड हो गया, क्या आपकी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी? कई दफा इस तरह होता है ना कि एक बंदा 324 का मुल्ज़म है, वो उसकी बेल पिटीशन लगी हुई है, मजलूम जिंदा था, आपकी जो 324 की बेल है वो ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस और जो भी है आपकी सेशन कोर्ट से मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी, सेशन से ले ली। अब वो बंदा जैसी आपकी बेल हुई है 2 दिन बाद मर गया, अब 324 ने कन्वर्ट हो जाना 302 के अंदर। 324 और 302 में जमीन आसमान का फर्क है, इट कम्स टू पनिशमेंट। तो क्या आपकी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी? टू हैंडल सच प्रोपोजिशन, मुशबा सलीम भट्ट वर्सेस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन Justice Ali Ziad Bajwa sahab, and to be very honest, not because I learned a lot from him, I rate him as one of the top-notch Faujdari judges in the prevailing law, और he has a lot of years to serve, but बहुत कमाल की ये जजमेंट उन्होंने लिखी और पूरी साइंस को एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं subsequent addition of offences does not amount to automatic cancellation of bail। So अगर उसके अंदर 337 F1 और अब F6 लग गया हुआ है, that does not mean कि अब उसकी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और वो अपनी जजमेंट में बताते हैं कि बेल को कैंसिल करवाने का जो वाहिद मैकेनिज्म है वो 497(5) है, और उस 497(5) के मुताबिक अगर आपकी वन ऑफ द ग्राउंड्स के अंदर केस फॉल करता है जो मुज़ाहिर अली अकबर नफीसा वाली जजमेंट थी, देन यू कैन फाइल कैंसिलेशन ऑफ बेल के जी इसने मिसयूज ऑफ अब्यूज किया है। अगर आपने ऑर्डर इलीगल है जी, ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, so then you can say that, but automatically आप presumptively उसको कैंसिल नहीं करते। This is the concept which I learned. Revision cancellation of bail when order recalled. I have known since ages कि revision is only maintainable against the judicial orders। ऐसे ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कुजाए जुडिशियल ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन नहीं आती, वो या आपकी रेट आएगी या आपकी कोई और 561 ए आएगी। होता क्या है जी, इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है, सुनिए। मेरा एक क्लाइंट फैसलाबाद के अंदर, उस पे एक एफआईआर हो जाती है 337 F1, 352, 354, 452 ऑल बेलेबल। प्री अरेस्ट मूव करते हैं, जैसे हम कहते हैं सारी की सारी ये बेलेबल ऑफेंसेस है, लिहाजा इसकी मैं बेल कंफर्म कर देता हूं। बट अपनी पिटीशन के अंदर, मैं नहीं था उसका वकील नीचे, अपनी पिटीशन में वो कंसील क्या करते हैं कि 337 F6 भी लगा हुआ था जो कि नॉन बेलेबल है, लेकिन वो अपनी पिटीशन पे नहीं लिखते। ये जो भी चालाकी की उस वकील ने या जो भी जिस तरह भी किया, वो 337 F6 उसने नहीं लिखा, जैसे हमने बेल ग्रांट कर दी। उसी के अंदर कोई एक्यूज भी थे, उनकी बेलें मेरे पास आई हाई कोर्ट, मैंने वो हाई कोर्ट से बेलें कंफर्म हो गई। उसी ड्यूरेशन के दौरान तो मैंने कहा जी जो सिमिलर रोल के ऊपर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी खड़ा हो गया हुआ, लोअर कोर्ट ने इनकी जो है वो प्री अरेस्ट ले ली है, वहां पे वो ऑर्डर डिस्कस हुआ
और ऑपोजिट पार्टी को पता चला कि फलाने बंदे की तो नीचे से प्री अरेस्ट हो गई है, दूसरे ऊपर आए हैं, उन्होंने नीचे जाके 497(5) की पिटीशन फाइल कर दी। ऑल्दो मेरा ये मानना ये है कि 497(5) याद रखिएगा कि आगे पावर पॉइंट आएगी, जहां आपने इलीगैलिटी ऑफ ऑर्डर को सेल करना है। किसको? इलीगैलिटी ऑफ ऑर्डर को। इलीगैलिटी ऑफ ऑर्डर के जज साहब ने पढ़े बगैर देखे बगैर मैरिट के खिलाफ जो मैरिट को बेल ग्रांट कर दी है, ये ऑर्डर ही इलीगल है। अब इस ऑर्डर को जब भी आपने असेल करना है, नेक्स्ट अदालत में करना है। क्या करना है? नेक्स्ट अदालत में करना है। लेकिन पीछे बहुत हलचल हो रही है, प्लीज नेक्स्ट अदालत के अंदर आपने असेल करना है जाके। लेकिन अगर मिसयूज किया है, एब्यूज किया है, टेम्परिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन किया है, तो आपने सेम अदालत के पास जाना। उन्होंने 497(5) में अपने ही ऑर्डर को रिकॉल कर लिया। पहला सवाल, क्या वो कर सकते थे अपने ही ऑर्डर को रिकॉल या रिव्यू? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, गौर से सुनिएगा, दूसरा सवाल ये है कि जब उन्होंने रिकॉल कर लिया, अब उस बंदे के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? मुझे ऐसा ना लाइक मैंने प्री अरेस्ट फाइल कर दी, हाई कोर्ट ने कहा भाई साहब इसमें प्री अरेस्ट नहीं आएगी, निगरानी आएगी। आई पुट अ गुड फाइट इन अ ब्रांच की थी, निगरानी कैसे आ सकती है? दिस इज नॉट जुडिशियल ऑर्डर, देयर कम्स अ जजमेंट। मोहम्मद परवेज मलिक वर्सेस द स्टेट 1968 पीसीआरएलजे, उस वक्त पीसीआरएलजे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी छपती थी। 196 सुप्रीम कोर्ट, जैसे समूदुर रहमान साहब। When the lower court shall recall the bail would be filed under revision in the High Court challenging the already order. So when the order is recalled, bail order is recalled, so you file a revision by virtue of this judgment, number 1. Number 2, 439 की आखिरी 3-4 लाइनें पढ़ना, वहां पे भी बेल का कॉन्सेप्ट है निगरानी के अंदर। So when the bail order is recalled, you file criminal revision and आपको ad interim bail grant की जाती है during the revision proceeding for that on the purposes of this judgment. Then you have a Fawad case, very interesting. Fawad case. His Lordship, the great stalwart, Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa, the former Chief Justice of Pakistan. खोसा साहब कहते हैं, बल्कि कोर्ट ऑन कोर्ट पढ़ देते हैं, when an accused person admitted to bail was subsequently declared a proclaimed offender or non-bailable warrants of his arrest issued, then such declaration or issuance of non-bailable warrants, underlined है, highlighted है, ipso facto amounted to cancellation of such person's bail. मेरी प्री अरेस्ट बेल ग्रांट हुई, अली साहब का दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जाना ट्रायल कोर्ट, ऊपर से ट्रायल कोर्ट का भी दिमाग खराब हो गया, और नहीं आना, तो मेरे पास पूरे का पूरी एक साइंस अवेलेबल है, सेक्शन 75 टिल 87-88 की कार्रवाई को करते करते उन्होंने मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया। जब मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया तो मेरा स्टेटस क्या हो गया फवाद केस की रोशनी के अंदर? मेरी बेल इप्सो फैक्टो अमाउंट्स टू कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब यहां पे दो डिफरेंट डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस आ गई। सबसे पहली जजमेंट आती है जस्टिस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम साहब की। वो तारिक नदीम साहब कहते हैं आपके प्रोक्लेमेशन का जो ऑर्डर होगा, जो कि 75(2) में आपको 75 में आपके वारंट निकाले जाते हैं, आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जाता है। इफ यू वांट टू गेट इट सेट असाइड, इसको गिराना है, इसको फेंकना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू फाइल अ रिविजन। दैट वाज आगे चलता है समय से बाहर का वो फैसला। तकरीबन कुछ अरसे के बाद एक जजमेंट आती है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब की और मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम साहब। तारिक नदीम साहब अपने ही स्टांस को रीविजिट करते हैं, ऑथर जज हैं हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब, और वो कहते हैं नो, अगर आपके वारंट निकल जाए, आपकी प्रोक्लेमेशन हो जाए, तो आपने उसी अदालत में जाना है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 के तहत फॉर सेटिंग असाइड दोज वारंट्स।
setting aside those warrants. नॉर्मली हमारे यहाँ अदालतें अक्सर आपने एक आर्ग्यूमेंट जो आप बच्चे आपने से बच्चे फौजदारी चेंबर में काम कर रहे हैं, पॉलिसी मैटर। खैर आज तक मुझे तो नहीं समझ आई पॉलिसी क्या होती है कि 5 लाख से ऊपर, ये बल्कि फाद आपको ज्यादा बेहतर बताएगा कि मैजिस्ट्रेट ने 5 लाख से ऊपर के चेक की बेल क्यों नहीं लेनी, एडिशनल ने 10 लाख से ऊपर की क्यों नहीं लेनी, हाई कोर्ट में 4 करोड़ की वो भी हो जाती है। बट देयर एग्जिस्ट सम पॉलिसी, बट एट द सेम टाइम ये वो फैक्टर्स हैं आपके सामने, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्या बेटा ये मूवमेंट बहुत हो रही है, इसको इट कॉजेज अ डिस्ट्रैक्शन। सो ये इट कॉजेज अ डिस्ट्रैक्शन के सी जो आमद हो रही थी वो निकल गई सारी। खैर एनीवेज, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट, कोई क्वेश्चन हो अभी तक से रिलेटेड? चलें, ड्राफ्टिंग बेल पिटीशन जो मैंने आपको बताया था पहले कि मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गाइड करूं। बेटा हर लॉयर के, हर सीनियर काउंसिल के अपने अपने तरीकाकार हैं जिसके तहत वो ड्राफ्टिंग्स करते हैं, बट मैं आपके सामने अपने चेंबर का, अपनी फर्म का तरीकाकार आपके सामने रखने लगा हूं। मैं हर केस को, हर बेल पिटीशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, और ये 3 हिस्से मैंने कहां से सीखे? मैंने एफआईआर से सीखे। कैसे? एफआईआर को आप जब पढ़ते हैं, एफआईआर का नंबर होता है, तारीख वक्त वकूआ होता है, मुद्दई का नाम होता है, ऑफेंस होता है, थाने से जय वकूआ का डिस्टेंस होता है, उसके बाद रिपोर्ट कब भेजी गई उसका कॉलम होता है, उसके बाद बखिदमत जनाब एसएचओ साहब मियां एलिया दरवाज़ सो एंड सो सकला सो एंड सो, एक पेशा वकालत से मुंसलिक और सो एंड सो अपनी स्टोरी नरेट करते हैं। सो एफआईआर का एक फर्स्ट पोर्शन होता है जो फैक्चुअल पोर्शन होता है। सो आपकी बेल पिटीशन जो है उसके फर्स्ट पोर्शन को आपने, प्लीडिंग्स के फर्स्ट पोर्शन को आपने फैक्ट्स के ऊपर बेस करना है, फैक्ट्स के ऊपर। दूसरा आपके सामने ग्राउंड। नॉर्मली मेरी फर्म का तरीकाकार ये है कि हमारी बहुत फुल फ्लेज ड्राफ्टेड बेल पिटीशन होती है जिसपे हम, और गौर से सुनिएगा, जिसमें हम कुछ चुनिंदा किस्म के आर्गुमेंट्स को होल्ड बैक करके बाकी जितनी लाइन ऑफ आर्गुमेंट होती है वो डिस्क्लोज कर देते हैं, और वो जो हम पॉइंट होल्ड बैक करते हैं दे आर आवर स्टार आर्गुमेंट्स। बाकी प्लीडिंग्स के अंदर हम अपनी ग्राउंड्स के अंदर, अपने केस लॉस के अंदर, एंड व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट ना, आई आल्सो फ्रेम सर्टेन क्वेश्चन ऑफ लॉ कि अगर इस मुकदमे के अंदर ये सेक्शन लगाया है, क्या इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक ये सेक्शन बनता भी है कि नहीं बनता। That's my technique to get a reported judgment. Sometimes I'm successful in getting that, कि किसी अगर कोई सवाल अच्छा मैंने फ्रेम कर दिया है तो जज साहब got stuck to it कि ये फ्रेम आपने किस तरह किया है। यानी अभी एक एग्जांपल आपको दूंगा कि हमने एक कबर कुशाई का केस था और वो लिटिगेशन वेंट अप टू द हाई कोर्ट, और उसके अंदर हमने पूरी एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो थी तो तारिक सलीम शेख साहब की एक जजमेंट है उसकी बेसिस के ऊपर बनाते हुए क्वेश्चन फ्रेम किए थे, और अमजद रफीक साहब किसके पास लगा हुआ था। सो अमजद रफीक साहब ने बल्कि वहां पे एक और सवाल कर दिया मेरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट से बिल्कुल हटके, और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि सबसे पहले आप ये कहते हैं कि डेड बॉडी वाज कॉम्प्रोमाइज, उसके इधर जो लिगेचर मार्क्स है स्ट्रैंगुलेशन के, तो ये एलिगेशंस आपने कभी रेज किए पुलिस के सामने? सो दैट वाज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच वाज नॉट इन माय माइंड। सो दैट्स व्हाई what I do is कि I postulate my pleadings on 3 portions. You have facts, you have grounds, and you have the question of laws, which I try to frame because those question of laws equip me to understand my case in a much better position. ये आप लोगों के लिए बेटा मैंने पूरी एक रिसर्च ट्रेल दी है जो कि आपके ग्रुप्स में आ जाएगी, जिसके अंदर केस लॉज हैं, और ये मैंने एक आपको फेवर दिया या तोहफा दिया है कि ऑलमोस्ट 60% फौजदारी वकालत इन सेक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है, और इन सेक्शंस की वकालत के लिए जो आपको केस लॉ चाहिए समझने के लिए वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है, सो दैट यू जस्ट रीड दैट केस लॉ और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी के हो तो? नो, ये हो नहीं सकता सब कुछ समझ आया हो। फिलहाल अटेंडेंस की पड़ी है, एक बच्ची है। यस बेटा।